एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਕਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਕਈ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਸੰਬਰ 1931 ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਕਈ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲੱਥ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਸੁਚਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕਈ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਅਤੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਖੂਬ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਅਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੈ ਭਵਾਨੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਸੰਨ 1968 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਵਧਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 50 ਸਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਲਿਤ ਮਾਖਨ ਕਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨੌਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਨਿਕਾ ਕਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੇਪੀ ਅਗਰਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। कथन दे अनुसार आप जी हमेशा ही खरे उतरते सन। आप जी उर्दू दे ज्ञाता सन ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਕਈ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्योंकि समय का कोई पता नहीं कब निकल जाए। सत्य क्या है कि मृत्यु अटल है, जाना है और हमेशा हमारे पास में है। कब निकल जाए किसी को भरोसा नहीं है। हम रहे ना रहे मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सिर्फ आदमी का नाम रहता है। पुराना आदमी बहुत अच्छा था, बड़ा दुष्ट था, इस संसार से चले गया। बहुत पुण्य आत्मा थी, चले गई, यही साथ में जाता है, बाकी सब कुछ यही रह जाता है। दुनिया है ये हकीकत पुरानी, चलते रहना उसकी कहानी। हर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसलिए भगवान विष्णु जो है गरुड़ पुराण में लिखते हैं कि जब तक जीवन है, स्वस्थ है, तब तक अपने हाथ से दान पुण्य कर लो। कल कोई करे ना करे किसी के भरोसे का संबंध नहीं। और बताया है जीवन में 3 चीज जीते जीते अवश्य करनी चाहिए। सर्वप्रथम गौ का दान। बैतरणी नदी को पार करने के लिए भगवान विष्णु ने गरुड़ को कहा कि गौ का दान करना चाहिए। गौदान से पुण्य मिलती है। दूसरा सैया दान,
विष्णु सैया। और तीसरे जीते जीते अपने जीवन में सबसे 18 पुराणों में से कौन सा पुराण हमारा है? श्रीमद् भागवत कथा। 7 कुल का जो उद्धार कर देते हैं। जिस जीव के यहाँ, जिस जीव के प्रति हम जो है भागवत कथा का श्रवण करते हैं, साक्षात वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। तो हमारे कई सामने न जाने कितने बार गौदान भी किया और गौ की खुद सेवा करते हैं। वो तो करते करते हमें भी खुद जो है दूध दही पट्टा जो भी है पिलाते थे। इतने उनके भाव ब्राह्मण के प्रति। कई बार कथा करते गौ पुराण से, कहते कौन नहीं बेटा तो है लेकिन कर्म कौन कर रहा? दूसरे का। इस प्रकार से जो है भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, जो है माँ बाप का कर्म जो बेटा करता है उसको जो है 7 बार जो पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलता है वही बेटे को, उस बेटे को मिलता है जो अपने पिता की और दुर्य क्रिया करता है, पिंड दान करता है, सैया दान करता है। उसको जो है उस आत्मा को जो है शांति मिलती है जो कर्म करता है। और जो कर्म नहीं करता, जिसकी कर्म नहीं होती, वो क्या बन जाता है? प्रेत आत्मा। जिसका संस्कार नहीं होता है, पिंडदान नहीं होता है, सैयदान नहीं होता है, वो क्या बन जाती है? अंत में प्रेत आत्मा। उसको कहीं भी जगह नहीं मिलता, भटकता रहता है शरीर। आज कलयुग में सबसे बड़ा जो है दोष किसका है कुंडली में? काल सर्प, पितृदोष। इसीलिए बताया गया है। इस प्रकार से जो है ज्यादा समय का अभाव है। मैं भगवान विष्णु से यही प्रार्थना करूंगा कि स्वर्गीय महेंद्रपाल गई जी को अपने चरणों में वास देना, परिवार को जो है पीछे उनका आशीर्वाद बना रहे, वर्चस्व रहे। इसके बाद हमारे शास्त्री जी कुछ अपने जो है वचनों से उस पुण्य आत्मा के निमित्त कुछ शब्द बोलेंगे। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थस्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् ध्येयं सदा सवितुमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टा। और निश्चित रूप से यह जो आत्मा बड़ी पवित्र, इनकी जो भावना थी कर्म करने की, जैसे कुछ पूर्व पूज्य पंडित जी महाराज ने कहा, जब इससे मिलना होता था, यदि कोई व्यक्ति उदास बैठा है और इनसे मुलाकात हो गई तो इनका प्रफुल्ल मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके मन से वह उदासी हट जाती थी। बड़े सरल स्वभाव के, कहीं भी होगी, किसी भी स्थान पर हो, सरलता की ये मूर्ति थी। और स्वर्गीय धर्मपत्नी मोहन जी के इनके पुत्र स्वर्गीय ललित जी गए
और इनकी धर्मपत्नी मीनू जी के पोता अर्जुन के पोती आर्जु के, इनके दामाद चंद्रशेखर जी सूद, धर्मपत्नी सीमा सूद, द्वितीय बेटी विमल सहगल दामाद, इनकी धर्मपत्नी नीना जी सहगल और तृतीय बेटी आरती सूद, उनके पति स्वर्गीय राजशेखर जी सूद। निश्चित रूप से स्वर्गीय महेंद्रपाल जी के जाने से संपूर्ण जितने भी इष्ट मित्र गण है सबको अत्यंत, सबका मन दुखित हुआ है। और ऐसा दुख जिस प्रकार से अर्जुन जी गए, आर्जु जी गए, इन्होंने तो अपने दादों में पिता की छवि को देखा है। समस्त परिवार दुखित है। इस दुख को वाणी से प्रकट नहीं किया जा सकता और यही मानवता है। हम दुखों को बांट सकते हैं और यह प्रेम प्रकट कर सकते हैं। और निश्चित रूप से मानव जीवन में यदि किसी दुखी व्यक्ति के पास जावे तो निश्चित रूप से उसका दुख कम होता है। किसी के खुशी में जाए, उसकी खुशियां बांटे तो उसको खुशी की अनुभूति होती है। और वास्तव में यह जो प्रेम जब किसी व्यक्ति से होता है और वह व्यक्ति जब हमसे दूर होता है तो मन को बड़ी पीड़ा होती है, मन व्यथित होता है, क्योंकि मानव का स्वभाव है। एक छोटी सी मुलाकात किसी व्यक्ति से हो जाए, हम कोई सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और अपने विचारानुकूल, अपने अनुकूल कोई व्यक्ति मिल जाए, वह व्यक्ति जैसे ही चलने लगता है तो मन कहता है कुछ देर और यह व्यक्ति बैठ जाता, तो मन को अच्छी अनुभूति होती। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति मन को भा जाता है। इसलिए हम अधिक से अधिक समय उसके पास व्यतीत करना चाहते हैं। और इस जीवन यात्रा में जो माता पिता दादा जिनकी छत्र छाया में बच्चे बड़े हों, उनकी अंगुली पकड़ करके जिन्होंने चलना सिखाया हो, वे जब दूर चले जाते हैं तो मन अत्यधिक दुखित होता है। और वास्तव में यह इस संसार का कटु सत्य है। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया, एक न एक दिन उस व्यक्ति को इस भूधरा से अवश्य जाना है। इसे रोक भी तो कोई नहीं सकता। और उसके जो कर्म क्या हैं, जीवन में मैं सदैव ऐसे कर्म करूं कि मेरे कर्म करने से कोई अन्य पीड़ित न हो, मेरे मुख से कोई ऐसी वाणी न निकले जिस वाणी को सुन करके दूसरे का हृदय दुखित हो। जब ऐसी भावनाएं मन में आ जाती है, क्योंकि जो अपने लिए व्यक्ति चाहता है वही भावना जब दूसरे के प्रति बन जाती है तो उसको कोई विशेष धर्म नहीं अपनाना पड़ता, क्योंकि धर्म तो सदैव धारण किया जाता है, थोपा नहीं जाता। धर्म सदैव क्या है, हृदय से धारण किया जाता है। और धर्म का जो स्वरूप, जिस प्रकार से हम अपने शरीर में कोई अमूल्य वस्तु, गहना, सोना धारण करते हैं तो वह
हमको भारी लगते कभी नहीं, सहर्ष हम उसको स्वीकार करके पहन लेते हैं। उसी प्रकार से धर्म भी तो वही है जिसको सहर्ष स्वीकार किया जाए और उसको धारण करने में हमें गर्व की अनुभूति हो। ऐसी भावनाएं जब जीवन में आ जाती है तो व्यक्ति का एक एक किया हुआ कर्म वह जब प्रातः काल उठता है, जब उसकी ऐसी भावनाएं बन जाती है तो निश्चित रूप से सबसे पहले माता पिता के दर्शन करता है तो निश्चित रूप से उनकी सेवा करेगा, उनको पूछेगा। ऐसे जब वहां और इस प्रकार से वहां कहीं भी जाए तो सदैव इसी बात को मन में रख करके मेरे से कोई भूल न हो जाए, ऐसी उसकी भावनाएं बनती है। और ऐसे करके वहां दुनिया के चाहे एक कोने से दूसरे कोने में चले जाए, किसी भी धर्म में चले जाए, उससे जो भी कर्म होंगे सद ही कर्म होंगे। क्योंकि जो बड़े बड़े महापुरुष हुए आज हम उनकी जयंतियां मनाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी भी उदार भावनाएं थी। उनके मन में कभी ऐसा नहीं था कि अयम निजा परोवेति गणनाथ लघु चेतसाम उदार चरितांतां तो वसुधैव कुटुंबकम। उनकी जो भावनाएं बड़ी पवित्र विशाल थी, यह मेरा अपना है, यह पराय नहीं, इस भावना को निकाल दिया। पूरे संसार को क्या है, विश्व कुटुंब को साथ लेकर के जब वे चले तो इसीलिए हम क्या है आज उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, उन्हीं के मार्गों पर चलते हैं। आज की शोक सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, पंडित जी ने बड़े विस्तार से महेंद्रपाल कई जी के बारे में, जीवन के बारे में बहुत कुछ कहा है। मेरे को कहा गया कुछ श्रद्धांजलि के लिए, मैं अपनी ओर से कहूं, मैं इस गई फैमिली को बचपन से, शायद मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, 70 से पहले की बात है, तब से ही गई फैमिली को जानता हूं। गई साहब और वेद प्रकाश अग्रवाल जी सामने बैठे हैं। डोलेवाल चौक के साथ साउथ से रोड में मैनेजर होते थे, तो गई साहब की एक वर्कशॉप होती थी, तो हमारे परिवार का भी ट्रकों का काम था, तो तब से ही इनसे जानते हुए हर पल देखा मैंने कहीं गई साहब के मन पे किसी के प्रति कोई रंजिश, कोई कटुता, कोई कड़वाहट हमने देखी नहीं। जैसे पंडित जी ने बताया, गई साहब इतने सरल और सहज स्वभाव के थे, किसी के प्रति इनकी कोई लड़ाई झगड़ा होने की बात ही नहीं होती थी। अगर अपनी कोई गुस्से में भी कोई आता था ना, तो इनका चेहरा देख के वो ऑटोमेटिकली ही शांत हो जाता था। इतने सरल, इतने सहज स्वभाव के थे। बाकी मित्रों और दोस्तों, पंडित जी ने कहा, बहुत विस्तार से बताया, जैसे जिसने जन्म ले लिया उसने एक दिन जाना ही हो, तो निश्चित ही है। कहते ना, जीना झूठ मरना सच, पर हम उसको सोचते ही नहीं, करते ही नहीं, देखते ही नहीं है। अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं। हर कोई ये सोचता है यार दुनिया में मर जाना, मैं जिंदा रहना। सारा दिन मैं मेरी लगी रहती है। जो कुछ होना वो डर है। जो बंदे दिमाग की वाली एक भावना, एक विचार आ जाए ना, भाई मैं अगर आया तो जाना निश्चित ही है, कदों बुलावा आना कोई पता नहीं, तो बंदा कोई गलत काम शायद ना करे, लड़ाई झगड़े ना हो, कुछ ना हो। मैं ज्यादा ना कहता हुआ, इस पवित्र आत्मा जो सब छड़ के चली गई, ਉਹਦੇ प्रति श्रद्धा के फुल अर्पण करना, ਤੇ कई फैमिली ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੌਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੋਹਾਰਾ ਜੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ,
लुधियाना कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन और केस मित्तल जी, श्री नवदुर्गा मंदिर ट्रस्ट, श्री रामा चैरिटेबल हॉस्पिटल सुभाष जिंदल जी। इस तो अलावा कुछ राशि अलग अलग संस्थावां वास्ते दी गई है। नवदुर्गा मंदिर, सराबा नगर, आर्या स्कूल, आर्या मोहल्ला, गौशाला, साईं बाबा मंदिर, गुरुद्वारा सिंह सभा सरगोदा कॉलोनी, गोविंद धाम, एक नवदुर्गा मंदिर, माता मंदिर, सराबा नगर। ये सभी राशियां जेपी बम के पास हैं। कोई अधिकारी यहाँ पे बैठा हो इन संस्थाओं का तो ले सकता है। इससे पहले लोहारा जी 2 शब्द प्लीज। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ श्री महेंद्रपाल जी कई उन्होंने शोक सभा में शामिल होने वास्ते एकत्र हुए हैं। पंडित जी ने आपां कथा द्वारा बड़े विस्तार नाल जानकारी दी है। कई साहब का जीवन मैं सोच रहा कि बैठा भी कितों शुरू करके कितने किया जा सकता, क्योंकि कई साहब वर्गा सज्जन, कई साहब वर्गा मित्र, दोस्त, साथी शायद ही अज की इस दुनिया के विच कोई मिलता हो। इन्ना उद्यम, इन्ना उत्साह, उम्र का कोई उन्होंने अजे तक भी असर नहीं सी। ये उन्होंने खुशकिस्मती कह लो, चंगी किस्मत कह लो कि वो बहुत ही लंबी आयु भोग के गए हैं। लगभग मेरा ख्याल 90 साल। बेद जी को पता हो, बेद जी ने सर मारिया भी ठीक है। और बेद जी ने कई साल की साझीदारी, पार्टनरशिप, भरावां वाला प्यार जो भी कह लो, ये भी देखने को कितने नहीं मिलता। अज के पदार्थवादी स्वार्थवादी युग में भरावां की नहीं छेती निभती, वख-वख चुल्हे हो जाते हैं। कई दफा की अजकल का बहुती गिनती में हो रहा है, बाप बेटे का चूल्हा अलग हो जाता है। पर इन्होंने मेरा ख्याल लगभग 50 साल, अद्धी सदी पार्टनरशिप के विच निभाई है। कदे कोई एक राय घर का भी दोनों के विच फर्क सुनने नहीं मिलिया। 2 साल पहले ही इन्होंने आपस में बैठ के विचार किया भी समा तो पता नहीं कदों की हो जाना, भी आप जो कारोबार है वो बैठ के अपना अपना सेहत कर लीए। मेरी तो गुप्ता जी की ड्यूटी लगी, असी बिच बैठ के जो भी सीगा बड़े प्यार के नाल, मेरा नहीं ख्याल भरावां का नहीं इन्ना शांतमई ढंग नाल होंदा जिन्हां नाल इन्हां दा आपस में बैठ के बहुत ही प्यार नाल नवेड़ा हो गया। कई साहब हजे तक भी इन्ने उद्यमी सी, कोई उम्र का उन्होंने असर नहीं सी। रोज दफ्तर जाना चाहे 4 घंटे जान, जो ड्राइवर ने तो गड्डी भी चला के ले जानी है। घर का सारी जिम्मेवारी भी कई साहब से उन्होंने फ्रूट तो लैके साग सब्जी जो भी खरीदो फरोख्त करनी होंगी कई साहब से। बेशक उम्र होंगी जा रही थी, 90 साल कह देना खेला, अजकल तो 70 नहीं टपया जाता। और
उन्होंने पता तो सी भी पता नहीं समय ने कदों आ जाना। मैनू बड़ी हैरानी हुई, जेपी ने दसिया मैनू, कहना जी फोटो उत्थे रखनी है। मैं बड़े ध्यान नाल देखिया फोटो नूं, एक कई साहब ने अपने हथी आप तैयार करवाई, मतलब जान के तैयारियां कर रहे इसकी पहले। घर जाना तो है, हर एक मनुख ने जाना, ठहरना तो किसी ने नहीं। सदीवी विछोड़ा सब ने दे के जाना। ते कहते बना फोटो तैयार करके मैनू घरे सट के दिखाई भी मैं फोटो इस काम लिए तैयार की। सारे इत्थे आए भैन भरावां दा परिवार वालों हार्दिक धन्नवाद है जिन्होंने इन्ना समय कट के इत्थे आके अपनी हाजरी भरी है। बाहर लंगर तैयार है, खाना खा के जाना, इन प्रसाद के रूप ग्रहण करना प्लीज। धन्यवाद। ओम जय जगदीश हरि, माता पिता तुम मेरे, शरण गाऊं मैं किसके, स्वामी शरण गाऊं मैं किसके, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आश करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरि, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, आप सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरि। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः, शांतिः वनस्पतयः।